ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بزرگوں دوستو، بے شک تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ من وصف ہیں، جس کی رحمت کا سارا عالم محتاج ہے۔ اللہ جل جلالہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے مرتبے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بخشش عام ہے۔ اللہ بہاروں کو تلاش کرتے ہیں بندوں کی مغفرت کرنے کے لیے۔ اس لیے ایسے باتیں اردو میں بات آتی ہے، جہاں بھی ایسے دین کے مجلس رکھتے ہیں، ایسے مجالس پر جو ہے اس میں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت جو ہے ڈھانپ لیتی ہے، اس کا یقین ہو۔ جیسا ہمیں بکری کا بچہ ہے، مرغی کا بچہ ہے، ٹوکرا ڈھانپتے ہیں، جہاں بھی دین کی بات ہوتی ہے۔ اور شریعت کے اندر جو ہے جمعہ کا دن عید المومنین کو مسلمانوں کو عید کا دن، اس لیے نماز کے بعد جو ہے کام دھندا کرنے کا شریعت کے اندر قرآن جس کی روز سے دیکھا گیا، اس لیے اول وقت میں بعض علاقوں کے اندر جو ہے اول وقت میں جمعہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کاروبار کرتے ہیں۔ بزرگوں دوستوں، فضیلت بھی بہت ہے۔ جو پہلے آتا اس کو یہ اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا ثواب، وہی مقبول عورت پہلے آ جانا جمعہ، جو اس کے بعد آتا ایک گائے اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا وہی مقبول ہو گئی۔ اس کے بعد بکرا، مرغی، انڈا، جو پہلے آتا اس کی فضیلت ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن جو ہے آدمی جلد سے جلد آنے کی فکر کرنا اور دوسروں کو بھی بولنا کہ بھائی جو ہے بہت مبارک دن ہے، اس لیے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ دنیا کے وہاں سے جو ہے میرے پیسے کا سے کھاتا نہیں چلے دوسرے دوسرے گاؤں میں آپ کام کرتے ہیں، کیرلا وہاں یہاں مالش کام کرنے والا، مالش کا ملیا کام کرنے والے کہاں کام ملیا وہاں چلے جاتے، سعودی بھی چلے جاتے، دنیا حاصل کرنے کا آدمی۔ یہ تو دنیا ہے ختم ہونے والی، فنا ہونے والی۔ مرنے کے بعد کا ایک دن 50 سال برس کا، کتنے برس کا؟ 50,000۔ ہماری عمر 60-70 سال ہے، 100 نہیں 1000، 50,000 برس کا ایک دن ہے مرنے کے بعد۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں دنیا کی 60-70 سال کی زندگی اگر 100 سال بھی جی لیا اس کے مقابلے میں 3 منٹ 100 سال جی لیا، نہیں 60-70 سال لیا 2 منٹ 3 سیکنڈ، اتنی مختصر کی زندگی۔ یہ مختصر کی زندگی کے واسطے آدمی اتنی تھوڑ دور کر رہا، تو ہمیشہ کی زندگی جو موت کے بعد آنے والی ہے، مرنے کے بعد آنے والی ہے، اس کے واسطے کتنی فکر کرنا، کتنی تیاری کرنا۔ بالکل دوستوں، یہاں رہتے ہیں، اس کا نام دنیا ہے۔ دنیا دنیا سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، آسمان ہے، ہمارے زمین ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہمیں دنیا بولتے ہیں۔ دنیا کے نام رہے، جہاں جانا اس کا نام کیا ہے؟ آخرت۔ ہم کو جہاں جانا ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا ہے۔ مسلمان جو ہے آخرت پر ایمان لاتا، نہیں تقدیر پر ایمان لاتا۔ دوستو، یہ چیز جو ہے جو ہمارے بڑے تھے بزرگاں، اولیاء اللہ، اسلاف، جس کو اسلاف بولتے ہیں، اس کے بعد جو ہے صحابہ، تابعین، تابع تابعین، اولیاء اللہ، جتنے بھی ہیں اس چیز کو سمجھ گئے تھے کہ دنیا کو چھوڑ کے جانا، یہ چیز سمجھنا آتی مرنے کے بعد جو زندگی کو آپ کو تیاری کرنا ہو تو پہلے آخرت پہ ایمان لانا۔ کیا ہے صبح ہو رہی شام ہو رہی زندگی کر لے، ادھر تو کمانا، کیا بینک بیلنس کرنا، جائیداد پر کو چلے جانا، کھانا کمانا سمجھ رہا۔ یہ دنیا ضرورت زندگی ہے۔ ایک مقصد کیا سے اللہ دنیا میں اللہ تعالیٰ قرآن فرمائے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، خود اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں۔ ہمیں اتنے اور ایک مخلوق ہے جو ہم کو نظر نہیں آیا، جنات اور انسان، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے حاصل میں وہ عبادت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بتائے، انہوں کے یہاں شروع ہو گئی قرآن حدیث،
पाँच वक्त की नमाज क्या है? ये फ़र्ज़ है, इबादत में खाली फ़र्ज़ है, कंपलसरी करना। हज जिंदगी में माल है तो एक मरतबा हज करा लो, अल्हम्दुलिल्लाह। साल में एक मरतबा ज़कात निकाला हुआ माल है। महीने में एक महीना रोजे हैं, 30 रोजे, कभी 30 कभी 20 करना हो। 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। कितने वक्त की नमाज हो? हमारी ज़िंदगी में दिन चल गया, दोबारा जुम्मा नहीं आती, दूसरी जुम्मा आती, ये जुम्मा नहीं आती। आज तुम्हें मुनाफा कर लो, कितना भी कर लो बिजनेस में, तो खा लेते पी लेते खत्म होगा। लेकिन जो अपने सुबह की नमाज़ पढ़ ली है, अब ज़ोहर की नमाज़, अब जुम्मा की नमाज़ पढ़ लेती, असर पढ़ लेती, मगरिब पढ़ लेती, इशा पढ़ लेती, ये तुम्हारा आज का कामयाबी दिन फ़राइज़ अदा हो। सबसे बड़ा वजीफ़ा, आज आदमी परेशान है, ये वजीफ़ा दो, वो वजीफ़ा दो, जरा नहीं, सबसे बड़ा वजीफ़ा अल्लाह का फरीज़ा। नहीं, जब आज कैसा माहौल है, अल्लाह हिफाज़त फरमाए। नफ्सा नफ्सी का दौर है, सुबह हो रही, शाम हो रही, लेकिन ज़िंदगी आदमी यहाँ है, पैसे के पीछे पड़ा, माल के पीछे पड़ा, सोने के पीछे पड़ा, जायदाद के पीछे पड़ा, ख्वाहिशात की चीज़ों के पीछे पड़ा। आखिरत बोलने के आदमी को जो है, अल्लाह माशाअल्लाह 100 में 1-2 आदमी आखिरत, अरे भाई आखिरत की ज़िंदगी है, मरने के बाद की ज़िंदगी है। अभी जितने आदमी 90% आदमी गफलत में, अल्लाह को मुतकासुर, कुरान में अल्लाह को बताया, सारे इंसान जो है गफलत में ज़िंदगी गुजारा, इसी हाल में होता है। हत्ता अबुल होता है, कुरान में बोलिए अल्लाह ताला बता रही, आदमी की हिस्ट्री बता रही। जो लोग गफलत में ज़िंदगी गुजारी है, हम गफलत में चले जाते, तो जो हमेशा की ज़िंदगी आने वाली है, मेरे को आपको बनाए सो अल्लाह। मस्जिद बनाना हो तो क्या है, चारों तरफ दीवार है, ऊपर छत डालो, देखो आसमान में नजर जो आ रहा, यहाँ तो दीवार दिख रही इसके बगैर पिलरों के अल्लाह आसमान में खड़ा करे। अल्लाह कैसी कुदरत। हमें जंगल में चल गए, झोपड़पट्टी को देखे तो क्या बोलती, कौन की बनाया है वो, एक झोपड़पट्टी देख लिया तो खुद तो खुद बन गई बोलती है, समझाने का से बोल रहा मैं, उनके इंसान बनाना हो गया वो, ये खुद को खुद बन गया आसमान। अल्लाह कुरान में फरमा अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जन्नातिन अनवा। हमने ज़मीन को फर्श की तरह बिछा दिया, तारुफ कराने अल्लाह जाने मास का सब बिछे मौजूद था, ऐसा अल्लाह ज़मीन को बिछा दिया। ज़मीन हल्ला नहीं बोल तो अल्लाह पहाड़ों को रखे, बड़े बड़े पहाड़ गिरा मारते हैं, कोई चीज़ में हल्ला हो। हम आसमान से बारिश बरसाते हैं, अल्लाह की कुदरत। ज़मीन से गल्ला निकालते हैं, अल्लाह कैसा खजाना है ज़मीन के अंदर। क्या सोच रही हमें, समझ रही अल्लाह का खजाना ज़मीन के नीचे है। मीठे फल भी आ रही, कड़वे फल भी आ रही, करेला कड़वा आ रहा, फ्रूट्स कितने मीठे हैं, हर तरह की तरकारी आ रही है। आलू का मज़ा अलग, बैगन का मज़ा अलग, टमाटे का मज़ा अलग। ज़मीन से तो ज़मीन है, ज़मीन से सारी चीज़ें, जितने भी तरकारी है, जितने भी फ्रूट्स है, आम का मज़ा अलग, सेब का मज़ा अलग, वही मट्टी से निकल। अल्लाह की कुदरत खुद को देखो, क्या तो है अल्लाह ताला बता रहे। आसमान से बारिश बरसाते हैं, ज़मीन से गल्ला निकालते हैं। इंसान को अल्लाह कैसा बेहतरीन बनाए। वक्तीन में फरमा रहे अल्लाह लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। कुरान में अल्लाह बोले कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे के अंदर ढांचा। अल्लाह की कुदरत देखो, नहीं आँख जहाँ रखना वहाँ रखी, नाक जहाँ रखना वहाँ रखी, ज़बान आँख से देखता, नाक से सुनता, ज़बान से खाता। आँख पीछे हटे तो ऐसा पीछे दिखा दो, नाक से सुनको खाना पड़ता। ज़बान पीछे हटे तो आज्ञा से देखो, नाक से सुनको पीछे खिलाना पड़ता। आदमी खूबसूरत भी नजर नहीं आया। समझा लो, ये जो है सर के बाल को बढ़ा रही अल्लाह, पल्सों के बालों को नहीं बढ़ा रही। जिसको बढ़ा रहा उसको बढ़ा रही, जिसको नहीं बढ़ा उसको बढ़ा रही। अगर पल्सों के बाल बढ़ जाते तो इसको भी कट करना पड़ता। देखो हाथ के नाखून बढ़ रहे, दाता बढ़ा रही है अल्लाह की कुदरत। दाता बढ़ गए तो उसको भी काटना पड़ता। बेहतरीन सांचे में अल्लाह कुरान में बोल रहे, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में बनाया है। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की बड़ाई। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर एक पानी का खतरा बना सकते हैं। पानी कैसी नेमत, हवा कैसी नेमत। ये आदमी जो है अपना ईमान ताज़ा करना। ईमान 24 घंटे फर्ज है। ईमान कितने घंटे फर्ज है? आखिरत पर ईमान लाना। किस पर ईमान लाना? मरने के बाद जो दोबारा जो आखिरत की जो जिंदगी है, मैं बोला नहीं एक दिन 50,000 बरस का है वहाँ,
ये दुनिया की छोटी मोटी जिंदगी का असर 60-70 साल के आसे आप इतनी फिक्र है, इतनी मेहनत कर रहा और गफलत में जिंदगी गुजार दे रहा। मुसलमान क्या हो तो मुसलमान 8 के खाट के 360 के 8 के वो तो जुम्मा को जुम्मा पूरा हफ्ता डूबा। अल्लाह की एक आदत है, अल्लाह की एक कुदरत है, सुन्नत बोल जो आदमी तलब करता, जो फिक्र करता, अल्लाह उसको तौफीक देते आखिरत की तैयारी करने के वास्ते। नमाजा आखिरत की तैयारी लेके आती 5 नमाजा, आखिरत की तैयारी लेके आता अपने ईमान की हिफाजत। जुम्मा के दिन आदमी फिक्र करता जुम्मा की नमाज पढ़ना, मस्जिद भर जाती माशाल्लाह, हम तो नमाज पढ़ते लेवल बनते पाँव कैसे पढ़ना। फिर असर में देखो वो गिने चुने 10-12 आदमी, फिर मगरिब में देखो, फिर ईशा में देखो। जो मजमा जुम्मा को आता वो बाकी नमाजों को नहीं आता, फिर जुम्मा को आता। और उनके अंदर से क्या फिक्र के तौर पर माहौल ऐसा बन गया कि फिर कमाना खाना, जुम्मा को एक मरतबा नमाज पढ़ लेना, ईद के दिन या रमजान में रोजा रख लेना, ऐसा आदमी का जहन बन गया। ये गफलत बोलने अल्लाह गफलत जिंदगी गुजारा, गफलत में होता है। उस चीज को समझाने अल्लाह कुरान हदीस को भेजे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक आके समझा इंसानों को ये दुनिया की जिंदगी खत्म होने वाली, फना होने वाली, सूरज टूट जाएगा, चांद टूट जाएगा, आसमान जो है टूट जाएगा, पहाड़े रूल के गालों के माने उड़ जाएंगे, एक दिन है मुकर्रर, सारी दुनिया को अल्लाह तबाह कर देगा। इसमें आदमी जो है दुनिया 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 में लगा हुआ है, आखिरत से जो गाफिल है, मरने के बाद की जो जिंदगी है, जो हमेशा की जिंदगी है, समझाए 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम समझाए। बाद रिवायतों में आता है 2 लाख तक जितने भी नबी आए, भाई ये दुनिया की जो चीज़ें नजर आ रही, राहत और आराम की जो चीज़ें नजर आ रही है, सब खत्म होने वाले हैं। दुनिया के नेमतें बहुत थोड़े, बहुत हिल के बहुत जल्द खत्म हो जाए, नहीं आखिरत के नेमतें बहुत ज्यादा अभी खत्म नहीं होते। लाभ है उसका नाम क्या है? जन्नत। ख्वाहिशात की जगह मुसलमान के लिए जन्नत है, दुनिया खाना है। दुनिया के जितने भी तकलीफें हैं वो थोड़े, बहुत हिल के बहुत जल्द खत्म हो जाए। आखिरत की जो तकलीफें है लाभ है बहुत वजनी कभी खत्म नहीं होता, उसका नाम ध्यान है। मेरे अकबरे साहब को भेजी अल्लाह दुनिया का जो भिक्षु का चूरा होगा, हमारा तक तो देना खच्चर के बराबर होगा भिक्षु। आखिरत का जो भिक्षु है खच्चर के बराबर होगा। खच्चर वो तो जो घोड़े का सका होता जानवर, उसका क्या जहर होगा। दुनिया की आग क्या है? ये आग ऐसी है, इससे 70 गुना ज्यादा जहन्नम की आग, इससे 70 गुना आग ज्यादा कैसी है? दुनिया का सांप जो है उसका छोटा है, खाली उसका नाखुन जो बरसक की जिंदगी है, बरसक की जिंदगी बोलती, मरने के बाद खबर की जिंदगी है, उसको बरसक की जिंदगी बोलती। अल्लाह के लिए बोले खबर या जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के घरों में से गड़ा है, कब तक? क़यामत आने तक। जन्नती आदमी को जन्नत की खिड़की खोल देती, वहाँ की हवाएं आती। जहन्नमी आदमी को जहन्नम की खिड़की खोल देती, वहाँ के जो है धुआं वगैरह आता, अज़ाब होता है। जो बरसक का सांप है उसका नाखून इतना है, खाली नाखून 24 घंटे आदमी चल के गया तो कितने नहीं जा सकता, जब उसका नाखून पार कर सकता तो हज़ा कैसा होगा? मेरे रब ने तुझ पर मुसल्लत किया, तो अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से जो भी अल्लाह की नाफरमानी करे, सुबह की नमाज छोड़ा जोहर तक मार दो, जोहर की नमाज छोड़ा असर तक मार दो, असर की नमाज छोड़ा मगरिब तक मार दो, मगरिब की नमाज छोड़ा ईशा तक मार दो, ईशा की नमाज छोड़ा फजर तक मार दो, बालिग होने से लेकर मौत तक कितने नमाज छोड़ा जब तक मार दो। आँख बंद होने से पहले मौका है अपनी आखिरत को बना लेने का। एक मरतबा हज़ा मारा तो मुर्दा सांप हाथ जमीन में धस जाता, उसको दैवी निज़ाम बरसक की जिंदगी हो। पत्थर में 2 पतरे हैं, उसमें आँख नजर आ रही है, 2 पतरे में फट्टू मारो, चिंगारी निकलती। ऐसा खबर के अंदर जो हालात है वो हमारे आंखों को नजर नहीं आते, गैब में चलते हैं। बरसक की जिंदगी हो, तकलीफ होती है थी, जन्नती आदमी खालिश हो जाता, जो जन्नती था उसको पूछती क़यामत में तो कितने दिन था खबर में? आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में मरा 100 आदमी, तो हमारे नबी के ज़माने में जो सहाबा मर गए थे 1400 साल हो गए, तो क़यामत कब आती है अल्लाह को मालूम। वक्त कितना मालूम होता हमको? मगरिब से लेकर असर का वक्त जो वक्त था का वक्त, थोड़ी देर 2-3 घंटे सो को जन्नती आदमी जन्नत में था, एक बुरा आदमी खबर था,
کا گلے میں موتی کا ہار پکڑنے جاتا پوریا پر، وہ موتی کا ہار سنے تک قیامت آئے. تو میں آج جو بزرگوں دوستوں، غیب پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. اے خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، ہمیں سب خاکی ہے، ہمیں فنا ہونے والے. ہماری فطرت میں نہ نوری ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے. اے خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. ایمان لایا، نبیوں کی بات پر ایمان لایا، قرآن حدیث کی بات پر ایمان لایا. عمل سے بنتی ہے زندگی. 5 وقت نماز پڑھ لیا، اب تک جو زندگی ہو گئی اللہ معاف فرمائے، موت تک 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیا، رمضان کے روزے بھی رکھ لیا، زکات بھی نکالا، زندگی میں حج پرستہ حج بھی کر دیا، اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرے. ایمان کی حفاظت 24 گھنٹے کرنا. کتنے گھنٹے کرنا؟ 24 گھنٹے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. کیسا کرنا؟ اپنے اندر فکری طور پر فکر ہونا. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ایک ہے، غلط راستہ ایک ہے. جتنے بھی نبیاں آئے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، کسی انسان کو پکڑ کو جنت میں ڈالے، راستہ دکھائے. اللہ کا حکم مانو، نبی کے طریقے پر چلو، کامیاب ہو جاؤ، دین پہ زندگی گزارو، اس میں کامیابی ہے. عزت، ذلت، موت، حیات، آدمی کا یقین ہونا. عزت دینے والے اللہ، ذلت دینے والے اللہ، موت دینے والے اللہ، حیات دینے والے اللہ، بیماری دینے والے اللہ، شفا دینے والے اللہ، چیزوں میں نفع لانے والے اللہ، چیزوں میں نقصان لانے والے اللہ. سارے چیزیں اللہ کے محتاج، اللہ کی کس کے محتاج؟ یقین آدمی کا.